Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic of discussion is on rule of law. First of all, we have to see the general meaning of rule of law. The term rule of law has meant different things for different writers, especially in more recent times. To understand whether the rule of law exists in a particular legal system, it is essential to inquire about the sense in which the term is being used. So, some writers maintain that there are three basic senses in which the term is used. So there are three aspects in which the term rule of law is being used in recent times, uh, with further refined meanings associated to these three basic meanings. Uh, there are others who indicate that even in these three meanings, the term rule of law may be mentioned as a political theory or as a procedural device, and again it may be prescriptive, requiring something from the individual, or protective, requiring that governments acts according to law. So first of all, uh, the rule of law as law coming down from a higher authority. रूल ऑफ लॉ ऐसा कानून है जो किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से जो है वो इशू किया जा रहा है. In the first sense, we have to discuss three senses, and in the first sense, rule of law is law that comes down from a higher authority. And this higher authority may be divine or natural. The divine authority भी हो सकती है, natural authority भी हो सकती है. Law in this sense lays down limits upon the power of human rulers. तो divine law जो है, natural law जो है, वो human rulers पे, जो human beings पे जो है वो कुछ restrictions ऐड करता है, कुछ पाबंदियां impose करता है. In the initial stages, the authority for this higher law was considered to be divine. It is in this sense that Aristotle said, and the rule of the law is preferable to that of any individual. And the rule of the law is to the ancient Greeks, जो पुरानी यूनानी तहजीब थी उसके अंदर, man was under control of the forces of nature, which may not be the same as natural law. From Greek philosophy, the idea of natural law enters Roman law. तो ग्रीक जो है सिविलाइजेशन, ग्रीक जो कॉन्सेप्ट है उससे फिर जो है ये जो नोशन ऑफ आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ है ये आ गया रोमन लॉ के अंदर, रोमन एम्पायर के अंदर. सिसरो सेड ट्रू लॉ इज राइट रीजन इन एग्रीमेंट विद नेचर. यानी जो सही कानून है, जो सच्चा कानून है, वो एक सही अकली दलील पर मबनी होता है और फितरत से इन कॉन्सोनेंस रखता है, फितरत से मुताबिकत रखता है, फितरत से डेविएट नहीं करता, फितरत को वायलेट नहीं करता. इन क्रिश्चियन थॉट, जो ईसाई थियोलॉजी है उसके अंदर जो है थॉमस एक्विनस रिलाइंग ऑन द राइटिंग्स ऑफ इब्न सीना एंड इब्न रुश्द, इनके मुताबिक this rational guidance of created things on the part of God we can call the eternal law. तो हम नेचुरल लॉ को इटर्नल लॉ भी कहते हैं, दायमी कानून, हमेशा रहने वाला, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल. So, and this particular uh, participation in the eternal law by rational creatures is called natural. And this association with divine authority was changed to that of human reason and rationality. पहले डिवाइन लॉज हैं, नेचुरल लॉ है, और उसके बाद जो है उस डिवाइन अथॉरिटी की जो है उसको
शिफ्ट किया गया टू दैट ऑफ ह्यूमन रीजन एंड रैशनैलिटी। इंसानी जो इल्मियत है, इंसानी जो आकिल है, इंसानी जो इस्तदलाल है, by the time of Grotius was writing of international, ग्रोटियस का नाम जो है वो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से याद रखा जाता है। He maintained that natural law was recognizable by man by virtue of his rationality. कि नेचुरल लॉ को इंसान इस बेस पे जो है वो पहचानता है या ट्रेस करता है अपनी जो है अकलियत और इस्तदलाल की बुनियाद पर। And that a system of natural law would accordingly exist independently of theological perceptions and dictates. Gradually, the thinking turned into the discussion of law and rights. Resultantly, जो है फिर law and rights की बात हुई। The writing of Locke, Rousseau, and others led to the thinking of that with the approach that these are rights that transcend the law of the state, which can't be overridden by the state. तो जो rights सिटीजन्स को तफवीज़ किए जा रहे हैं उनको स्टेट जो है वो सबोताज नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि देयर अबव द स्टेट एंड द लॉ, यानी कानून और रियासत से ऊपर कोई चीज़ है, राइट्स ऑफ द पीपल हैं, and they have a higher authority, and further that these laws and rights are derivable through human reason, और ये जो rights हैं ये ह्यूमन रीजन के थ्रू जो है इनको महफूज किया गया, इनको स्टैब्लिश किया गया। So the higher authority for the law came to rest in universal human reason. उसके बाद the executive must not act arbitrarily and should demonstrate lawful authority. जो इंतज़ामिया है जिसको हम हुकूमत कहते हैं, जिसको हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हम एग्जीक्यूटिव का नाम देते हैं, जिसको हम रियासत की मशीनरी का नाम देते हैं, आर्बिट्रेरीली का मतलब है कि कोई मनमाना फैसला करना, कोई जालिमाना रवैया अपनाना, कोई डिक्टेटरशिप टाइप हो, कोई फर्द वाहिद की हुकूमत हो जिसमें एक जालिम हुक्मरान जो है वो सब कुछ जो है वो सारे फैसले वो खुद लेता है और एक अपनी जिद, अपनी मर्जी, अपनी मनमानी पे वो डट जाता है और अपनी रियासत की जो सब्जेक्ट्स रियाया है उसको कंसीडर्स टू बी लाइक वर्म्स। तो इस तरह जो ये सिस्टम जो है आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये मनमाना निज़ाम, ये फर्द वाहिद की हुकूमत, ये without any check and balance, तो it would go to disaster and bad governance. So all executive actions must rely on a law and seek authority from such law to justify their action. Arbitrary or discretionary authority goes against the meaning of rule of law. The meaning will come up again under the views of Tyson. जो मनमाना फैसला है, डिस्क्रिशन फैसला है, सवाबदीदी इख्तियार है, ये रूल ऑफ लॉ की सिफत के अगेंस्ट। एग्जेक्टिव जो है, जो बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी, उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसका हर एक्शन जो होगा वो कानून के ताबे होगा। इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इट वुड नॉट वायलेट द लॉ ऑफ द लैंड। Every action of the state, every action of the government machinery, every action of the executive will be in consonance with the provisions of the law, the spirit of the law of the land. उसके बाद the rule of law must mean certain basic conditions to be eligible for being called rule of law. Rule of law का जो मयार है, जो टच स्टोन है, जो सोची है जिस पे हम रूल ऑफ लॉ को पकड़ते हैं, a certain number of condition must be met. यानी कोई ऐसी सिचुएशन जिसको हम रूल ऑफ लॉ कह रहे हैं, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ जो प्रीरेक्विजिट्स हैं। Such conditions were laid down by Lord Fuller, but some conditions were prescribed in the Declaration of Delhi 1959. The rule of law contains a duty to obey the law. रूल ऑफ लॉ के अंदर एक ड्यूटी है कानून की पास करना, कानून का एहतराम करना, कानून की पाबंदी करना, कानून को फॉलो करना।
The rule of law does not limit the power of rulers alone. Rule of law न सिर्फ रूलर्स पे चेक एंड बैलेंस रखता है बट आल्सो इम्पोजेस द ड्यूटी ऑन द इंडिविजुअल टू ओबे द लॉ। लेकिन इंडिविजुअलिटी की तरफ भी एक इम्प्लीकेशन है, एक इशारा है कि हर फर्द जो है वो ड्यूटी बाउंड है कानून की पासदारी। अकेला रूलर्स पे वो लॉ अप्लाई नहीं होगा कि सिर्फ रूलर्स ही लॉ को ओबे करें, बल्कि जो लोग रूल्ड किए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो रियाया हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो शहरी है, वो भी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी पैरामीटर में कानून की पासदारी के लिए पाबंद है। The issue whether there is a duty to obey the law is an important part of modern jurisprudence. The well-known example is taken from Plato's dialogues. Plato की जो मकाल में है, in particular his dialogue called Crito. Plato का जो dialogue है Crito, Socrates was sentenced to death on charges of corrupting the youth of Athens. अब सुकरात पे ये इल्ज़ाम था कि उसने एथेंस के जो नौजवान लोग हैं उनको करप्ट कर दिया है और उसको सजाए मौत की सजा दी गई। हिज फ्रेंड क्रीटो, उसका जो दोस्त क्रीटो था, केम टू हिम जेल, उसके पास जेल में आया एंड सेड, और उससे कहा दैट ही हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर हिज एस्केप, कि उसने उसके भागने का इंतजाम कर लिया है, यहाँ से वो उसको जेल से भगाएगा। सोक्रेटिस रिफ्यूज्ड टू एस्केप। सोक्रेटिस ने भागने से इनकार कर दिया और सोक्रेटिस ने क्या कहा, कैन यू डिनाई that by this act of escaping, which you are contemplating, you intend so far as you have the power to destroy us, the laws, and the whole state as well. आप मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हो मेरे दोस्त, तो क्या तुम हमें तबाह करने जा रहे हो, हमारे कानून की धज्जियां उड़ाने जा रहे हो, मेरे रियासत की जड़ें मेरी रियासत की जड़ें जो हैं वो खोखली करने जा रहे हो। Can continue to exist and not be turned upside down if the legal judgments which are pronounced in it have no force but are nullified and destroyed by a private person. स्टेट की जो प्रोनाउंसमेंट है उसका एहतराम किया जाएगा। अगर रियासत ने मुझे सज़ाए मौत दे दी है तो मैं उसको कबूल करूँगा, मैं अपनी सरजमीन के कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाऊँगा, मैं अपनी रियासत के जो सेटल्ड लॉज हैं उनके खिलाफ बगावत नहीं करूँगा, और किसी प्राइवेट पर्सन को ये इख्तियार नहीं है कि वो रियासत के लॉज का मजाक उड़ाए या उसको अपने हाथ में ले। In other words, people must accept the law as something they are duty bound to obey, otherwise the whole fabric of society can be destroyed. तो हर फर्द जब अपनी जिम्मेदारी लेगा कि मैंने कानून की पासदारी करनी है, तो उस वक्त फिर मुआशरे में जो है वो रूल ऑफ लॉ की फ़ज़ा कायम होगी, जस्टिस फराहम किया जाएगा और मुआशरा खुशहाली और तरक्की की तरफ गामज़न होगा। और अगर ये सिटीज़न अपने मुल्क के कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो फिर मुआशरे का जो शिराजा है वो बिखर जाएगा, मुआशरे की जो जड़ें हैं वो खोखली हो जाएंगी और मुआशरा जो है वो एनार्की का और सवाल पजीरी का जो है सामना है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड। Much before Dicey's time, England was dominated by Christian thought and ideas. डाइसी के दौर से पहले इंग्लैंड के अंदर जो है क्रिश्चियन का गलबा था, क्रिश्चियंस का बोलबाला था, उनके आइडियाज़, उनकी थियोलॉजी, उनकी टीचिंग्स, उनके डॉक्ट्रिन्स, उनकी प्रीचिंग, जिस तरह बाकी यूरोप में भी इसी तरह क्रिश्चियंस का जो है वो गलबा था। इन द 13th century, ब्रैक्टन wrote that, 13वीं सदी में ब्रैक्टन ने लिखा, the king himself ought not be subject to man but subject to God and to the law, because the law makes him king. किंग किसी इंसान के ताबे नहीं है, किंग खुदा के ताबे है और कानून और ज़ाब्ते के ताबे, क्योंकि ये कानून ही है जो कि इंसान किसी इंसान को बात जाता है। He held the theory which was maintained generally in the Middle Ages
that the world was governed by law, human or divine. इस दुनिया पे जो है वो राज, वो कानून है, चाहे ये कानून इंसानों का बनाया हो और चाहे ये कानून ज़ाते पाक अल्लाह ताला का बनाया हो. And that the king was bound by this law, और बादशाह इस कानून का पाबंद है. The theory implied that such law was superior and set limits to the royal prerogative. कानून वाला था और जो शाही खानदान है उसके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको नैरो डाउन किया जाए, उन पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. England broke away from the Roman Catholic Church in 1535. 1535 में इंग्लैंड जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च से जुदा हो गया, अलहदा हो गया. हेनरी VIII became the head of the English church, और हेनरी VIII जो था वो इंग्लैंड की चर्च का जो है वो चेयरमैन बन गया. The duty owed to God and to his higher law was now a duty owed to the king. अब वो ड्यूटी जो खुदा की तरफ थी और एक कानूनी औला की तरफ थी, वो अब उस बादशाह की तरफ शिफ्ट हुआ. Thus, obedience to the sovereign now became a religious as well as a political duty. उन्होंने कहा सिस्टम को चेंज कर दिया, एक नया नजरिया ख्याल जो है वो दिया कि बादशाह की जो फर्माबरदारी हो वही मजहबी फरीदा होगा और वही रियासत की जिम्मेदारी भी होगी. Thomas More, who had refused to acknowledge such authority for the king, was executed. अब थॉमस मोर ने इस बात से इनकार करा. थॉमस मोर ने कहा कि भाई सबसे बड़ी अथॉरिटी तो नेचुरल लॉ है, डिवाइन लॉ है, और बादशाह भी उसके ताबे हैं, तो मजहबी तौर पर हम बादशाह की क्यों ताबे हों? मजहबी तौर पर तो हम क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के ताबे होंगे, जिसने कायनात को तख्लीक किया है. तो थॉमस मोर जो है उसने जो बगावत का अलम उठाया, थॉमस मोर हु हैड रिफ्यूज्ड टू एक्नॉलेज सच अथॉरिटी फॉर द किंग वाज एग्जीक्यूटेड. उसने कहा बादशाह की जो ताबेदारी है वो रियासत के मामला तक तो ठीक है, लेकिन जब मजहब इन्वॉल्व हो जाएगा, जब थियोलॉजी इन्वॉल्व हो जाएगी, जब नेचर की बात होगी, तो वो तो ओमनीपोटेंट कोई और अथॉरिटी है, कोई ज़मीनी बादशाह तो नहीं हो सकता. तो इस तरह थॉमस मोर को जो है वो भी गर्दनफनी कर दी गई, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया. Natural law thinking continued to make its way into British legal thought before the rise of parliamentary sovereignty and the settlement of 1688. 1688 तक जो है अपना रूल ऑफ लॉ ने जो है वो अपना सफ़र तय करते हुए पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो है वहाँ तक जो है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट पहुँचा. One of the leading exponents of such thinking was the Chief Justice Sir Edward Coke. उस दौर में चीफ जस्टिस सर एडवर्ड कोक थे, उनका नाम मशहूर है. देयर वाज अ स्ट्रगल बिटवीन हिम एंड किंग जेम्स वन. उसके दरमियान और किंग जेम्स वन के दरमियान एक जो है रस्साकशी शुरू हो गई, एक लड़ाई शुरू हो गई. कोक proclaimed that it was the common law that controlled the acts of parliament and could sometimes declare them to be void. That is, the common law had a higher authority than the king and the parliament. चीफ जस्टिस सर एडवर्ड कोक ने कहा कि कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ विच इज बेस्ड ऑन राइट्स एंड रिचुअल्स, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस. तो उसने कहा जो कॉमन लॉ है वो सुपीरियर है अथॉरिटी ऑफ द किंग पे या अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट पे. द रिस्पॉन्स ऑफ जेम्स वन वाज दैट द किंग प्रोटेक्ट्स द लॉ एंड नॉट द लॉ द किंग. अब किंग का जवाब ये था कि बादशाह जो है वो लॉ का मुहाफिज है, ना कि लॉ जो है वो बादशाह का मुहाफिज है. Coke was trying to insist upon a higher authority for the common law, though not natural law, but he was dismissed from the post of Chief Justice in 1616. तो कोक को जो है 1616 में अपने इस नज़रियात की बगावत की वजह से जो है वो चीफ जस्टिस की वजह से हाथ धोने पड़े. It was now accepted that it was for the king to formulate policy and make the law.
लेकिन इस बात को मान लिया गया कि किंग ने ही पॉलिसी बनानी है और किंग ने ही कानून बनाना है रियासत के लिए. The prerogative power of the king and the resulting control continue to dominate English constitutional law until 1688. 1688 तक बादशाह का जो ये गलबा रहा पॉलिसी मेकिंग और लॉ मेकिंग के मरहले में. The position changed with the settlement of 1688 and the Bill of Rights 1689. उसके बाद Bill of Rights जो इंट्रोड्यूस करवाया गया 1689 में. The doctrine of parliamentary sovereignty over the king was accepted. Parliamentary जो sovereignty थी उसको king के ऊपर जो है वो तकवीयत की गई. And with it the prerogative of the common law was established. Common law का जो तकद्दुस था उसको maintain किया गया. The judges however bowed to the sovereignty of parliament. लेकिन judges जुडिशरी जो थी वो पार्लियामेंट के ताबे की गई. According to Jackson and Leopold, it could be said that the British Constitution does not know of any rule of law, since no superior law puts limits to what Parliament may legislate. वो कहते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. रूल ऑफ लॉ वाज एब्सेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश लीगल सिस्टम एट दैट टाइम. व्हाई? क्योंकि पार्लियामेंट जो मर्जी लेजिस्लेशन करे उस पर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं. आपकी हायर जुडिशरी जो है वो भी पार्लियामेंट के ताबे कर दी गई. Suggestions by writers and extrajudicially by certain judges that there are limits to what Parliament may enact and hence is subject to the rule of law are purely speculative. कि पार्लियामेंट को किसी कानून के ताबे बनाया जाए ये तो नहीं होगा कि पार्लियामेंट जो मर्जी करे. ये तो आर्बिट्रेरी सिस्टम हो जाएगा लेजिस्लेशन का. जो मर्जी वो अपनी डिस्कशन में जो मर्जी लेजिस्लेशन करें. They also add in this sense it would be appropriate to describe those legal systems which recognize a judicial power to hold legislation unconstitutional as being subject to the rule of law. Thus, the power of judicial review is a crucial test for the supremacy of the higher law, like the written constitutions. तो written constitutions जहाँ राइज हैं वहाँ जो legislation की जो पावर है वो जुडिशरी किताबें हैं जहाँ written constitution मौजूद है. Here, Jackson and Leopold are talking about higher law, whether common law or natural law, as being higher or as having supremacy over parliament. तो जैक्सन और लियो पोल्ड का ये नजरिया था कि जो हायर लॉ है चाहे वो कॉमन लॉ की शक्ल में हो चाहे वो नेचुरल लॉ की शक्ल में हो उसको पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो अहमियत हासिल होना चाहिए. पार्लियामेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द real spirit of law, whether it is common law, whether it is natural law. It is in the light of such a law that legislation can be declared unconstitutional through judicial review. जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जिस तरह अमेरिका में सिस्टम है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून जो है वो बनाएगा जो स्टेट के लिए मिसफिट है तो जुडिशरी के पास अख्तियार होना चाहिए कि वो जुडिशियल रिव्यू करके उस लॉ को नल एंड वॉइड करार दे कि ये इस रियासत के लिए इन शहरों के लिए जो है वो मौजू या मुनासिब नहीं है, सूट नहीं करता. This is in the first sense we have described. The conclusion they draw is that there is no such rule of law in the United. लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंदर ऐसा रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू की शक्ल में मौजूद नहीं है क्योंकि वहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम. रूल ऑफ लॉ रेस्ट ऑन ट्विन फाउंडेशंस. रूल ऑफ लॉ की बुनियाद जो है वो दो सतूनों पे है, दो चीजों पे है, दो पैरामीटर्स पे है. द सॉवरेनिटी ऑफ द क्वीन इन पार्लियामेंट in making the law and the sovereignty of the Queen's courts in interpreting and applying the law. When we are talking of the British Parliament तो उसके अंदर जो है sovereignty of the Queen Parliament में भी है और sovereignty of the Queen जो है वो interpretations of law में भी है, legislation के हवाले से भी है और interpretation के हवाले से भी. The duty of the courts is merely to interpret the law while the supreme power of making the law rests with लेकिन जितने भी मॉडर्न लीगल सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो है लेजिस्लेशन का काम जो है वो पार्लियामेंट के पास है और उन कवानीन की जो तशरीह करना है उन कवानीन को जो इंटरप्रेट करना है वो जिम्मेदारी जो है वो कोर्ट्स के पास है.
लेकिन डाइसे ने 1885 में एक नया कॉन्सेप्ट दिया दैट बिकेम फेमस एंड डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इवन इन द कॉलोनीज where it still persists despite criticism in the यूनाइटेड किंगडम itself. तो नेक्स्ट हम जो है वो डाइसिस का जो क्रिटिसिज्म है और उसकी जो डाइसे की जो नज़रियात है रूल ऑफ लॉ के रिलेटेड उनके हम जो है वो उसमें डालेंगे.